میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے پے در پہ جھٹکے۔ عوام کو چند روز میں بجلی کا دوسرا جھٹکا لگا دیا گیا ہے۔ نیپرا نے مئی کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اضافہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے بلوں پر ہوگا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ بالکل، مہنگائی سے ستائی عوام کو بجلی کے جھٹکے جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ کبھی بنیادی ٹیرف میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو کبھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ عوام پر بجلی گرا دی جاتی ہے۔ نیپرا نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیپرا نے مئی کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈسکوز نے مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا، تاہم سی پی پی اے نے 2 سے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اتھارٹی نے 5 جولائی ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی۔ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف جولائی کے بلوں پر ہوگا اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ڈسکوز کے تمام صارفین ماسوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن پر ہوگا۔ اس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، فہد یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ سلسلہ یہی تھم جائے گا یا عوام کو کوئی اور مزید جھٹکے بھی لگائے جائیں گے؟ جی بالکل، ایک جانب تو حکومت کی جانب سے بھی چند دن قبل ہی جو ہے وہ بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مئی کے ماہ کا جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جو رواں ماہ جو ہے وہ صارفین کو ادا کرنا پڑے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ صرف 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت صرف 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ جو ہے وہ جون کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ہر ماہ جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ کئی سال سے۔ تو عوام پر جو ہے وہ ہر ماہ ہی بجلی کے جھٹکے جو ہے وہ عوام کو لگائے جا رہے ہیں اور ہر ماہ بجلی کی قیمت میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے فہد، یہ بتائیے گا کہ عوام کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، شہری تو جو ہے وہ پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے ایک جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ہر ماہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ ابھی چند روز قبل ہی جو ہے وہ نیپرا نے بنیادی ٹیرف بڑھایا تھا اور اب جو ہے وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 90 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ عام آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، کیونکہ بجلی کے بل جو ہے جس کا بل پہلے 2 سے 3 ہزار روپے آتا تھا، اب ان کا بل جو ہے وہ 7 سے 8 ہزار تک پہنچ چکا ہے اور جو دہاڑی کا طبقہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے اس اضافے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری طبقہ ہے وہ جو ہے وہ شدید پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کی کاسٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام پر جو ہے وہ براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ عوام پر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 50 روپے بڑھ گئی ہے۔ فی من گندم کی قیمت 4750 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2900 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2920 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1450 روپے ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، چھوٹی عید کے بعد 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے گندم اور آٹے کی قیمتیں مستحکم نہیں ہو سکی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 50 روپے اضافے کے ساتھ آج 4750 روپے کی ہو گئی ہے، جبکہ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوز گندم مافیا کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ اس وجہ سے اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2920 روپے کا فروخت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے 10 کلو آٹے کا تھیلا 1450 روپے کا فروخت ہونے لگا ہے اور 15 کلو آٹے کا پرائیویٹ تھیلا 2450 روپے میں فروخت کیا جانے لگا ہے۔ اس والے سے شہری مہنگی آٹا کی خریداری سے پریشان اور حکومت سے ناراض بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس والے سے ڈپٹی ڈائریکٹر مس نعیمہ کا کہنا ہے کہ گندم مارکیٹ میں سرکار کی گندم مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، ہمارے ذخائر ہمارے گوداموں میں ہے، سٹاکس کیے ہوئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ مافیا کی کمر سرکار اپنی گندم ریلیز کر کے ہی
توڑ سکتی ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ پروسیس جو ہے پچھلے 3 ماہ سے چل رہا ہے، جس سے جو آٹے کا تھیلا تھا وہ 630 روپے سے 10 کلو آٹے کا تھیلا اب 1450 روپے کا ہوا. عمران اور اپڈیٹ اس کر کے رہے تھے، بعد بہت شکریہ عمران. دن بدن بڑھتی مہنگائی سے عوام پریشان ہو گئے ہیں. سرکاری نرخوں میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. منافع خور بھی عوام کو لوٹنے سے باز نہیں آئے ہیں. پھل بھی بدستور مہنگے داموں فروخت کیے جانے لگے. برائلر 8 روپے سستا مگر قیمت 567 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے. جی زاہد. بالکل مارکیٹ میں مہنگائی کا سلسلہ کسی نہ کسی طور برقرار ہے. کسی ایک چیز کی قیمت اگر کم ہوتی ہے تو کئی اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کل یہی صورتحال ہے. چکن برائلر گوشت کی قیمت میں تھوڑی سی کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے دوسری طرف سبزیوں کی قیمت میں مسلسل تیزی ہے. اور سبزیوں کی قیمت میں تیزی کی وجہ جو موسمی حالات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور آج جو صورتحال ہے اس میں برائلر گوشت 8 روپے کلو اس کی قیمت کم ہوئی ہے اور 567 روپے تاحال اس کی قیمت ہے، جو کہ کافی زیادہ خیال کی جا رہی ہے. انڈے 257 روپے فی درجن ہیں، جبکہ پیاز تقریباً 60 سے 70 روپے فی کلو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ٹماٹر کی قیمت بھی اسی طرح 100 روپے فی کلو درجہ اول ٹماٹر کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے. سارا ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. اب کیا کہیں گے جو اس وقت صورتحال خاص طور پر چکن اور سبزی وغیرہ کی نظر آتی ہے؟ حکومت کا کام ہے سبسڈی دے، پیٹرول سستا کرے. ساری چیزیں تو آتی ہیں پیٹرول کے اوپر. آپ کا پیٹرول ہی اس وقت جو ہے وہ ڈبل ریٹ پہ چل رہا ہے، تو پھر سبزیاں بھی مہنگی ہوں گی اور مہنگائی بھی آئے گی. تو اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. ہمارے اعلیٰ کام سے اپیل ہے تو وہ جو درمیانہ طبقہ وہ زیادہ پس رہا ہے. جی بالکل، عوام کا یہی کہنا ہے کہ جو مسلسل مہنگائی کا سلسلہ ہے اس میں بجلی، گیس، پیٹرول کی مہنگائی بھی ایک اثر انداز ہو رہی ہے. اور اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اس میں جیسے جیسے بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، بارش جتنی زیادہ ہوگی اتنی سبزیاں متاثر ہوں گی اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. تو عوام یہی مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے جس میں کم از کم روزانہ استعمال ہونے والی یہ سبزی، گوشت، ان کی قیمتیں کسی حد تک کنٹرول رکھی جا سکیں. زاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے، جبکہ چینی ڈیلرز کے مطابق چینی کی فی کلو قیمت 141 سے کم ہو کر 137 روپے تک آ گئی ہے. 2 روز میں تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 7 روپے تک کم ہوئی ہے. پرچون مارکیٹ میں چینی تاحال 150 روپے کلو تک دستیاب ہے. بالکل، آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے. چینی ڈیلرز کے مطابق چینی کی فی کلو قیمت 141 سے کم ہو کر 137 روپے تک آ گئی ہے، جبکہ 2 روز میں تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 7 روپے تک کم ہوئی ہے. مزید کیا اپڈیٹس ہیں یہ بتائیں گے عمران اکبر. جی عمران. ہاں جی بالکل، مہنگائی کے جھٹکے شہریوں کو مسلسل دیے جا رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے چینی کی قیمتوں میں تو چینی کی جو سرکاری اس وقت پرائس ہے وہ 96 روپے فی کلو ہے، جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے تھی. مگر آج کے دن میں چینی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی نظر آئی ہے. 2 روز میں تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 144 سے کم ہو کر 137 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز 3 روپے کمی کے ساتھ تھوک مارکیٹ میں چینی 140 روپے کلو تک فروخت ہوئی ہے. آج مزید 4 روپے کمی کے ساتھ تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت 137 روپے فی کلو ہوئی ہے. یہ کہنا تھا چینی ڈیلرز کا، جبکہ مارکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ پرچون مارکیٹ میں چینی کی قیمت 150 روپے کلو برقرار ہے اور چینی کی قیمت ایکسپورٹ کی اجازت دینے سے بڑھی ہے. ذرائع محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی بھی چینی کی قیمت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ. پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے اہلیت کا معیار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ تعیناتی کے لیے تعلیمی قابلیت کے 20 نمبرز ہوں گے. ایم فل کے لیے 3 نمبر، پی ایچ ڈی کے لیے 7، ٹوٹل 10 نمبرز ہوں گے، جبکہ گزشتہ 5 سالوں کی سالانہ خفیہ رپورٹ بھی دیکھی جائیں گی. تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے عاطف پرویز. جی بتائیے. بالکل، آر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کالجز میں پرنسپل کی تعیناتی کے لیے جو معیار ہے اس کو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا اور تعلیمی قابلیت کے 20 نمبر جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں. امیدوار ایم فل ہے تو 3 نمبر اور اگر پی ایچ ڈی ہے تو 7 نمبر اور کل 10 نمبر جو ہیں وہ قابلیت کے رکھے گئے. گزشتہ 5 سالوں کی خفیہ رپورٹ جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی. ان میں اس رپورٹ کا 1 نمبر 30 سال، گڈ کے جو ہے 2 نمبر 30 سال اور ویری گڈ کے 3 نمبر جو 30 سال ہوں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ 15 نمبر
जो है रखे जाएंगे। सर्विस में अगर 10 साल से कम है तो 2 नंबर, और 10 साल और 15 साल के दरमियान है तो 4 नंबर, और अगर 15 साल से 20 साल के दरमियान है तो 6 नंबर, और अगर 20 से 25 साल के दरमियान है तो 8 नंबर, और अगर 25 से ज़्यादा है तो 10 नंबर जो है वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बे के 20 नंबर हैं। इनमें बतौर चेयरमैन, डायरेक्टर, पुराने ज़माने के ईडी और प्रिंसिपल और महकमा तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी के तजर्बे के 4 नंबर 30 साल जो है कुल 20 रखे गए हैं। तालीमी बोर्ड में बतौर कंट्रोलर, बतौर सेक्रेटरी बोर्ड, डिप्टी डायरेक्टर और इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल और सेक्शन ऑफिसर 3 नंबर जो है वो 30 साल के रखे गए, और इसके मजमूई नंबर जो है वो 15 रखे गए हैं। और इस वक्त अगर बात ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। मॉनसून का तीसरा स्पेल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद भी गर्मी का जोर टूट न सका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास का कहना है आज भी लाहौर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल से 23 जुलाई तक अच्छी बारिश बरसेगी। अगस्त के पहले 10 दिनों में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद, जो कि इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास के साथ ही मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि मानसून के तीसरे स्पेल का जो आगाज़ है वो हो चुका है। आसमान पर ताहाल भी बादलों का बसेरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ गर्मी और हब्स की जो कैफियत है वो भी अच्छी खासी महसूस की जा रही है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज जो है वो शहर लाहौर में किस तरह की बारिश बरसेगी? मानसून का जो पीक पीरियड चल रहा है और मानसून के पीरियड में नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से बारिश की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब भी ये कल बारिश हुई है तो उसकी वजह से हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है और जो हबस है वो फील हो रहा है। आज भी सेकंड टाइम एक बारिश का स्पेल आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं। लेकिन कल से लेकर अगले 3 दिन जो है जो वो बारिशें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और ठंडी बारिशें हैं और वो कंटिन्यू चलती रहेंगी और ये 23 से 24 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज कुछ दिन गर्म है, कल और परसों अगले 2-3 दिन और वीकेंड बहुत खूबसूरत और ठंडा होगा। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अभी जो है वो मौसम गर्म रहेगा, लेकिन मिड में जो यही सूरत हाल बयान की जा रही है कि आज हल्की बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज तो यही देखेंगे कि मौसम जो है वो गर्म रहेगा, साथ में हल्की बारिश जो है वो बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद यही इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि रवां जो 3 दिन है इनमें हम यही देखेंगे कि अच्छी बारिशें शहर लाहौर में बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में भी जो है वो अच्छी बारिशें बरसेंगी और अगस्त के पहले 10 दिन जो हैं वो ठंडे ही रहेंगे। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। मानसून की बारिशों से जमा पानी डेंगू लार्वा की अमाजगाह बन गया है। शहर के 10 टाउन में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद होने का इंकशाफ सामने आया है। तो मानसून की बारिशों में खड़ा पानी डेंगू लार्वे का सबब बनने लगा है। शहर में डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। शहर में डेंगू केसेस और लार्वे में इजाफा होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बारिशों में खड़ा पानी डेंगू वायरस का सबब बनने लगा है, जिसकी वजह से शहर के अंदर डेंगू लार्वा की अफजाइश और डेंगू वायरस के फैलने के खदशात भी पैदा हो चुके हैं। जबकि जो महकमा सेहत की टीमें हैं इनकी जानिब से सर्विलेंस ना होने की वजह से शहर के अंदर जो डेंगू लार्वा है बड़ी तादाद में भी बरामद किया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 700 से ज़ायद इंडोर आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा को तल्फ किया गया है। जबकि शहर के अंदर तकरीबन इस वक्त 13 मुश्तबा जो डेंगू के मरीज़ हैं ये ज़ेर इलाज है। जबकि शहर के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़ायद डेंगू के हॉटस्पॉट मौजूद है, जिससे खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि डेंगू लार्वा मज़ीद बढ़ेगा, जिससे डेंगू वायरस जो है ये फैलेगा। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से इंडोर आउटडोर एक्टिविटी भी की जा रही है और डेंगू SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। और अब तक तकरीबन 2,224 से ज़ायद जो अफराद हैं इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसमें से तकरीबन 63 अफराद को गिरफ्तार भी करवाया गया है। तकरीबन अब
तक जो है ये 42,000 से ज़ायद जो अफराद हैं इनको नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहर के अंदर जो डेंगू हॉटस्पॉट है इनको मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद किया जा रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। अब शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें और जो है ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें ताकि रवां साल डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास माह मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात और प्राइस कंट्रोल इकदामात का जायज़ा लिया गया। मुजालिस और जलसों के रूट्स और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की आटे की कीमत, तलब और रसद पर कड़ी नज़र रखने की भी हिदायत। तफसीलात बताएंगे हसन रजा। जी बताइए। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर प्राइस कंट्रोल इकदामात का जायजा लिया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान कौमी यकजहती मजहबी हम आहंगी की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात करने के इकदाम जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि मुजालिस और जुलूसों के लिए मुकर्ररा करदा रूट्स और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया पुलिस को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए प्लान तैयार होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी का गैर मुल्कियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों के इजलास मुनक्किद करके रिपोर्ट भिजवाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शख्स के हवाले से भी मामला का तफसीली जायजा लिया जिसके बाद मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी करार देते हुए उन्होंने मुतलका अफसरान को एक्टिव रहने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्रामफरोशी की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में मुतहर्रिक किया जाए। चीफ सेक्रेटरी की आटे की कीमत, तलब और रसद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा शुदा गंदम को जब्त करके मार्केट में फरोख्त कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में अस्पताल और म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर बनाने से मुतालिक भी हिदायत जारी की। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सनत, खुराक, लाइफ स्टॉक के महकमों के सेक्रेटरी से मुतल्लिक़ अफसरान के इजलास में शरीक थे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में आज 403 मजालिस और 10 जुलूस बरामद होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस तमाम अजला में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बना रही है। तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। जी बताइए। 14 कैटेगरी की आज़ादारी जुलूस, 321 कैटेगरी की मजालिस इसमें शामिल है। सूबाई दारुल हुकूमत में आज कुल जो है 403 मजालिस मुनक्किद और 10 आज़ादारी जुलूस बरामद हो गए। कैटेगरी 1 की 46 मजालिस इसमें शामिल हैं। सुबह भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिस अफसरान तैनात किए गए हैं, ऐसा कहना है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। पुलिस तमाम इजला में आज़ादारी जुलूसों और मजालिस के फुल सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बना रही है। खवातीन आज़ादारी के सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडीज पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। सुबह भर में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जामिया हिकमत के तहत इंतजाम किए गए हैं। ठीक है मुजाहिद, शुक्रिया आपका। अलहमरा में मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में यौम अशूर तक कमर्शियल ड्रामे बंद रहेंगे। अलहमरा एकेडमी आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की म्यूज़िक की क्लासेस भी बंद रहेंगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अलहमरा में मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में यौम आशूरा तक कमर्शियल ड्रामे बंद रहेंगे। म्यूजिक क्लासेस जो हैं वो भी बंद रहेंगी और तमाम जो शोज हैं उनको बंद करने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और यही कहा जा रहा है कि जो नया आने वाला साल हो ये तरक्की और खुशहाली का साल हो और अलहमरा हमारी इक़्तिदार, तहजीब व तमद्दुन है, यही कहा जा रहा है डायरेक्टर की जानिब से। और डायरेक्टर की जानिब से ताहाल यही इक़दाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी किस्म के ड्रामे और म्यूजिक जो शोज हैं वो मुहम्मद इस महीने में नहीं होंगे। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो DC लाहौर आफे हैदर का कसरे बतूल इमाम बारगाह शादमान का दौरा किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ मुंतजमीन की DC लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है। DC लाहौर ने जुलूस और मजालिस के मुंतजमीन से भी मुलाकात की है। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के इंतजाम का मामला है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने कसरे बतूल इमाम बारगाह
शादमान का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर माल्टाउन साहबजादा यूसुफ मुंतजमीन ने DC लाहौर को बाकायदा ब्रीफिंग दी है। इस मौका पर MO रेगुलेशन फैसल शहजाद ने बाकायदा तौर पर मरहूम हराम के रूट के हवाले से ब्रीफिंग दी। कसरे बतूल अमाम बारगाह से निकलने वाले जुलूस शादमान अली मस्जिद में पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर रफी हैदर का कहना है कि यौम अशूर को कसरे बतूल इमाम बारगाह से सुबह 9 बजे जुलूस बरामद होगा, जबकि जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह तक पहुंचेगा। जुलूस रूट पर पैच वर्क लाइट्स की तनसीब का काम जारी है। LWMC आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को 100% क्लियर करे, मुकम्मल सफाई रखे, जबकि नाले के इतराफ में भी सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। सिविल डिफेंस एहलकार पुलिस के साथ जुलूस रूट पर सिक्योरिटी के फराइज का अंजाम देंगे। बारिशों के पेश नजर वासा जुलूस रूट से पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाएगा। शाहजमाल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरयत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरयत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरयत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, मैं इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हूँ और एहतसाब अदालत में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज समेत दीगर 16 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जो नैब की जानब से 7 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया गया था। साल 2020 में ये रेफरेंस दायर किया गया था। इस रेफरेंस पर फ़ैसला कुछ देर बाद जो है वो सुनाया जाएगा। इस हवाले से एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया था और महफूज फ़ैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा। इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं वो अदालत में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने अदालत में पेश होकर हाज़िरी लगाई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज की जानब से आज हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई कि उनकी कमर में तकलीफ़ के बायस वो पेश नहीं हो सकते हैं। लिहाजा अदालत 1 दिन की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे, जबकि दीगर मुल्ज़मान में से कुछ हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें दायर की गईं, कुछ को हाज़िरी से इस्तिस्ना हासिल है और दीगर मुल्ज़मान अदालत में मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान जो हैं वो केस पर फ़ैसला सुनाएंगे। ये रेफरेंस नैब की जानब से साल 2020 में 7 अरब का ये रेफरेंस दायर किया गया था और इसमें ये रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज में दीगर ने आमदन से ज़ायद सासाजात बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये इल्ज़ाम आयद किया गया था जिस पर वकला मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में दलाइल दिए। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत में दलाइल दिए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने यह फ़ैसला महफूज किया जो कि आज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। परवेज़ इलाही को नामालूम जगह पर मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फ्री कैंप से जवाब तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। समाअत का अहवाल बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बताइए। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी के रूबरू परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दरख्वास्त में ये इख्तियार किया गया था कि परवेज़ इलाही को कैंप जेल से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है और लिहाजा इस हवाले से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी नुक्ता उठाया गया है कि परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है, इसके बावजूद इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। लिहाजा नज़रबंदी का जो इल्ज़ाम है वो भी कलअदम करार दिया जाए। दौरान समाअत अदालत के रूबरू परवेज़ इलाही की बाज़याबी से मुतल्लिक दरख्वास्त मुखला ने वापस ले ली। अदालत ने दीगर 2 दरख्वास्तों पर फ्री कैंप को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया। 9 मई को जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ का केस है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी कर दी है। उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह, एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड, थाना गुलबर्ग और थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है।
तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, इंतज़ामी दस्तगती की खसूसी अदालत में 9 मई इजलास और तोड़फोड़ के मुकदमात में डॉक्टर यासमीन, राशिद एजाज चौधरी, जशा और मस्तिफा की सरताज सीमा में दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। मुलजमान के खिलाफ जो चालान है वो तैयारी के मराहल में है। अदालत मोहलत फराहम करे, इस हवाले से अदालत ने डॉक्टर यासमीन राशिद की कैद में तोड़फोड़ के मुकदमे में जुडिशल मामले में 31 जुलाई तक का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने मुस्तफा जिमा जैसा दीगर के जुडिशल मामले में 3 अगस्त तक जो है वो तस्दीक का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से खदीजा शाह समीर जावेद समेत दीगर के खिलाफ थाना सर्वर रोड में जुना हाउस का मुकदमा दर्ज था, जबकि मियां महमूद रशीद को जुना हाउस तोड़फोड़ में थाना सर्वर रोड में दीगर मुकदमा में पेश किया गया। इस तरह ठीक है, नुमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। तफसीलात बताएंगे जैन अली। जी जैन। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का एहतजाज का आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की बड़ी तादाद अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। एहतजाज कब तक जारी रहेगा, मजीद जानते हैं। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल तैयब इजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। ये तीसरे रोज़ का नहीं, हम मुसलसल 1 माह से मुसलसल एहतजाज पे हैं। मुलाजमीन का जो यूनिवर्सिटी के अंदर मुतालबा है वो 44% हाउस रिक्विजिशन का है, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का है, जो गुज़श्ता कई सालों से ज़ेर अल्तवा है। हमारा यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ये मुतालबा रहा है कि फिल फॉर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का ये अलाउंसेज हैं इसको बहाल किया जाए, लेकिन उन्होंने बजाय बहाल करने के हमारा जो ईदैन के मौका पर जो ऑनरेरियम मिलता है उसको बंद कर दिया है, जिस पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तैयब इजाज की आपने बात सुन, इनका कहना था कि जब तक इनके मुतालबात वो माने नहीं जाते तब तक तो है वो सरापा एहतजाज रहेंगे। बड़ी तादाद जो मुलाजमीन की इस एहतजाज में शरीक है, तीसरे रोज़ जो है वो ये एहतजाज दाखिल हो चुका हुआ है। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते, मुलाजमीन का भी यही कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते वो यहाँ से नहीं उठेंगे, मुतालबात माने जाएंगे तब भी वो एहतजाज जो है वो ख़त्म करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जैन।